আবার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ থেকে পাঠ করি। গত সপ্তাহে আমরা পড়েছিলাম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবমুখে থাকছেন। শ্রী শ্রী জগদম্বা মা ভবতারিণী তাকে এরকম আদেশ দিয়েছিলেন তিনবার যে তুই ভাবমুখে থাক, ভাবমুখে থাক। ঠাকুর এই যে ভাবমুখে থেকে সকলের ভাব কিভাবে বুঝতে পারতেন তারই বর্ণনা শ্রীমৎ স্বামী শারদানন্দজি মহারাজ শ্রী শ্রী ঠাকুরের এই জীবনী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার একটি উদাহরণ এখানে তিনি বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন স্বামী শারদানন্দজি মহারাজ। তার মধ্যে প্রথম উদাহরণটি আমরা পড়ছিলাম মণিমোহন মল্লিকের ঘটনা। মণিমোহন মল্লিক তার সন্তান মারা গেছে, ছেলে মারা যাওয়াতে তার পুত্র শোক হয়েছে, ভীষণভাবে কাতর এবং কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে। সে মতো অবস্থায় मणिमोहन मल्लिक दक्षिणेश्वरे ठाकुर जी के पास आया है। भगवान श्री राम कृष्णदेव दक्षिणेश्वर में रहते थे। उसी समय मणिमोहन मल्लिक उनके पास आए हैं, क्योंकि मणिमोहन मल्लिक इससे पहले ही भगवान श्री राम कृष्णदेव के पास आया जाया करते रहते थे। उनको पता है कि भगवान श्री राम कृष्णदेव ही एकमात्र उपाय है जो मेरा शोक, मेरा ताप, ये जो दुख, ये कष्ट, ये जो पुत्र शोक, ये वही केवल शांत कर सकते हैं। इसलिए वो उनके पास आए हैं। সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্যান্যরা অনেকেই ছিলেন, কিন্তু সকলেই যেমন আমরা করে থাকি, কেউ একজন এরকম শোকগ্রস্ত হয়ে আসলে আমরা সান্ত্বনা দেই, ভাই এই মায়ার সংসার, এই মায়ার জগৎ, এখানে এরকমই, এখানে জন্মালে মরতে হবেই, এ তো নিয়মের কথা, অতএব শোক করে লাভ নেই, তুমি ধৈর্য ধরো ইত্যাদি, এই রকমভাবে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি। ठीक उसी तरह जो लोग वहाँ उपस्थित थे भगवान श्री राम कृष्णदेव के कमरे में, वो सब उनको ऐसा ही सांत्वना देने लगे। लेकिन मनमोहन मल्लिक का वो जो शोक, मन का जो दुख, हृदय का जो संताप, वो दूर नहीं हुआ। तो वो ऐसा ही और भी मान लो कष्ट में डूब गए हो। उसी समय भगवान श्री राम कृष्णदेव एक गाना गाए थे, जीव साजो समरे, जीव साजो समरे, रणवेशे काल प्रवेशे तोर घरे। इसका मतलब है, हे जीव, अभी ये जो है ये जैसे कि कुरुक्षेत्र, समर क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र है, यहाँ तुमको लड़ाई करना है। और लड़ाई करने के लिए तुमको मन को सख्त करना है, हृदय में बल लाना है, शरीर भी तुमको दृढ़ करना है। तो इसलिए किसके साथ लड़ाई? ना जो मृत्यु है, मृत्यु, काल, महाकाल, काल रूपी मृत्यु सबको ग्रास करते हैं। वो हमेशा जैसा मान लो वो पीछे पीछे घूम रहे हैं, कभी भी ये जीव को वो पकड़ लेंगे और खींच के ले चले जाएंगे ये जगत से। तो इसलिए हमको तैयार रहना है, सतर्क रहना है। किस तरह से सतर्क रहना है ये गाना में वही बताया गया है। यही गाना गाने के बाद भगवान श्री राम कृष्णदेव इस तरह से गाना गाए, मान लो वो जो रूम का जो वातावरण था वो जैसे कि कोई एक दिव्य भाव से भरपूर हो गए हो। दिव्य भावे भरपूर হয়েছে সেই ঘর, যারা ছিলেন তারাও সকলে একেবারে ভাবগ্রস্ত হয়েছে। আর মণিমোহন চুপ করে শুনছে। মণিমোহন জাস্ট শান্ত होकर वो सुन रहे थे। তখন ঠাকুর তার নিজের জীবনের একটি ঘটনা মণিমোহনকে শোনাচ্ছেন। বলছেন, পুত্র শোকের মতো কি আর জ্বালা আছে? খোলটা থেকে বেরোয় কি না? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ যতদিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে। पुत्र शोक ऐसा है, इसके समान दूसरा कोई शोक नहीं होता।
क्योंकि ये खोलटा থেকে বেরোয় কিনা, অর্থাৎ পুত্র সন্তান পিতার এই শরীর থেকেই জাত কিনা, ওর মধ্যে পিता নিজেকেই देखे, खुद को देखते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा खोलटा থেকে বেরোয় কিনা, जितना दिन ये शरीर रहेगा उतना दिन ही वो शोक, वो ताप, वो दुख, वो कष्ट हमको कष्ट देते रहेगा। এই বলিয়া ঠাকুর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাহাকে বলিতে লাগিলেন। এমন বিমর্ষভাবে গম্ভীরভাবে ঠাকুর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আপনার আত্মীয়ের মৃত্যু পুনরায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন। বলিলেন, অক্ষয় মল, তখন কিছুই হলো না, কেমন করে মানুষ মরে বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটা খাপ থেকে বের করে নিলে তলোয়ারের কিছু হলো না, যেমন তেমনিই থাকলো, খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হলো, খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে তো জুড়িয়ে দিল। তার পরদিন ঘরের পূর্বে কালীবাড়ির উঠানের সামনের বারান্দার দিকে দেখিয়ে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখছি কি যেন প্রাণের ভেতরটা গামছা যেমন নেংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে। অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি করছে। ভাবলুম, মা, এখানে আমার পেছনের কাপড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল। এখানেই যদি আমার এরকম হয় তখন গৃহীদের শোকে কি না হয় তাই দেখাচ্ছিস বটে। भगवान श्री राम कृष्ण देव के भतीजे अक्षय कुमार के बारे में खुद वर्णना किए। बोले अक्षय का देहांत हो गया था, ठीक उसी समय भगवान श्री राम कृष्ण देव वहाँ मौजूद थे। उन्होंने देखा अक्षय का प्राण जैसे मान लो निकल गया, जैसे कि तलवारी जैसे होते हैं, तलवार होते हैं ना, तलवार क्या है, एक खाप के अंदर रहते हैं, तो मान लो तलवार को निकाल लिया, खाप ऐसे पढ़ाई देह शरीर जैसे मान लो खाप, इसके अंदर वो तलवार था, उसको निकाल लिया गया। ऐसा देखते वो खुद जैसे कि चाक्षुष देख रहे हैं। ऐसा देखने के बाद खूब हंसने लगे, बहुत हंस रहे थे, मज़ा आ गया। अरे देखो, अब तो ये पुराना जो खाप है, जो कवर है, इसको फेंक दिया, अभी नया खाप नया कवर में उसको रखा जाएगा। इस तरह से उनको समझ में आ गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही कहते हैं। क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कि लोग पुरातन वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं, उसी तरह ये जो आत्मा है, जो ये शरीर के अंदर है, वही आत्मा ये शरीर जब पुराना हो जाते हैं, जब अथर्व हो जाते हैं, जब वो विकारग्रस्त हो जाते हैं, उसको छोड़ के निकाल जाते हैं दूसरा नया शरीर धारण करने के लिए। गीता की वाणी इस तरह से भगवान जैसे मान लो भगवान श्री राम कृष्ण देव मान लो चाक्षुष प्रत्यक्ष कर रहे हैं। फिर अक्षय का शरीर को सत्कार हो गया, दाह कर दिया गया। लेकिन 2-3 दिन के बाद भगवान श्री राम कृष्ण देव को ऐसा लगा जो उनका जो मन है, मान लो उनको जैसे कि गमछा होते हैं, गमछा को भीगा हुआ गमछा को पानी निचोड़ने के लिए इस तरह से निचोड़ते हैं ना, उस तरह से उनका हृदय, उनका मन का कोई एक दुख से इस तरह से निचोड़ने का जैसा होता है उस तरह हो रहा है। तब तुरंत फिर से उनका मन को फिर भाव आ गया, तो वो भाव चला गया। तो उन्होंने कहा माँ जगदम्बा को, माँ ये तो मैं हूँ जो जिनका पहनने का कपड़ा कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, কোথায় থাকে আমার পরনের কাপড় আমি নিজেই জানি না। ওনার ভাব যখন হতো তখন ওনার নিজের কোনো হুঁশ থাকতো না। और मैं नहीं जानता
लेकिन मेरा भी इस तरह से भतीजे के लिए इतना शोक होता है। तो जो लोग गृही होते हैं, गृहस्थ होते हैं, जो लोग संसार में रहते हैं, जिनका आत्मीय सजन, भाई बहन, स्त्री पुत्र, माँ बाप, आत्मीय सजन, पाड़ा पड़ोसी, ये सारे लोग के साथ जिनका व्यवहार हमेशा चलता रहता है, रोज का कर्म है, तो उनका मन में कितना दुख होगा। इस तरह से ठाकुर जी मणिमोहन को सुना रहे थे। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, তবে কি জানো, যারা তাঁকে ধরে থাকে অর্থাৎ ভগবানকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না, একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুটির মতো আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি গঙ্গায় স্টিমারগুলো গেলে জেলে ডিঙ্গিগুলো কেমন হয়, মনে হয় যেন একেবারে তলিয়ে গেল, আর সামলাতে পারলে না, কোনোখানা বা উল্টেই গেল। আর বড় বড় হাজার মনে কিস্তিগুলো দু চারবার টালমাটাল হয়েই যেমনি স্থির ছিল তেমনি হলো। दो चार बार नाड़ाचाड़ा किंतु खेते ही हवे। एक उदाहरण भगवान श्री रामकृष्ण देव दे रहे हैं, जैसा वो खड़ बोलते हैं, स्ट्रॉ, धान का वो जो पेड़ होता है सूखा हुआ, उसको ऐसा गिट्टी बांध के और बेचते हैं। बंगाल में दिखाई देता है। गंगा में बहुत बड़ा बड़ा जैसा कि बोट है, उसमें यही वो स्ट्रॉ को एक साथ इकट्ठा करके उसको ले जाते हैं। तो जब स्टीमर जाते भी हैं, जैसा कि जहाज़ जाते हैं, तो पानी इतना क्या बोलते हल्पा आ जाता है, तो उसी समय वो थोड़ा बहुत इस तरह से टालमाटाल होते हैं। लेकिन इतना बड़ा है तो वो डूबता नहीं। लेकिन छोटा छोटा जो डोंगी होते हैं ना, छोटी छोटी मछली पकड़ने वाला डोंगी होती है, तो वो डोंगी क्या होता है, इतना वो टलमटल हो जाते हैं कि वो कोई कोई तो डूब जाते हैं, कोई कोई इधर उधर होकर थोड़ा बहुत धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो बड़ा वाला बोट जो है, जिसमें वो खड़ स्ट्रॉ है, वो जस्ट एक दो बार तीन बार चार बार थोड़ा इधर उधर करके फिर से स्थिर हो जाते हैं। उसी तरह जिनका भगवान के चरणों में मन नियुक्त है, समर्पित है, उनको ये जो जगत का जो दुख शोक ताप, ये जो द्वंद्व, दुख सुख दुख, भालो मंद, शुभ अशुभ, ये सारे चीज़, शीत ग्रीष्म, ये सारे चीज़ उनको प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जानते हैं ये सब आएगा जाएगा, आयाराम गयाराम। लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस तरह से जिनका मन दृढ़ हो गया है, किंबा जिनका मन भगवान का चरण में समर्पित हैं, भक्त जो हैं, उनको वो जानते हैं ये सारे चीज़ भगवान की खेला है, भगवान खेल रहे हैं। ये सारे चीज़ जो हो रहा है, इसको मैं साक्षीवत दृष्टा हूँ। इसके लिए जो होता है होने दो, मैं तो वही हूँ, भगवान के चरण पकड़ के रहता हूँ। इस तरह से जिनका भाव है, उनके ऊपर ये शोक दुख ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो এই কথা ভগবান যখন বললেন, তারপরে ঠাকুর বলছেন কেমনভাবে সংসারের অনিত্যতা মণিমোহনকে বোঝাচ্ছেন। মণিমোহনকে বোঝাচ্ছেন এমনটা নয়, তিনি যেন মণিমোহনের মতোই হয়ে গেছেন, হয়ে তার মতন শোকে কষ্ট পাওয়াটা কেমন সেটা বলছেন। যেমন আবার তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি যে এ জগতের পারে কেউ একজন, সেটিও বোঝাচ্ছেন। বলছেন কয়দিনের জন্যেই বা সংসারের এ সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ, এই যে পুত্র স্ত্রী পুত্র, বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন ধন সম্পত্তি বাড়ি গাড়ি, এ সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ কতদিন, এই যতদিন এই দেহটা আছে ততদিন। মানুষ সুখের আশায় সংসার করতে যায়,
তারপর বিয়ে করে, ছেলে হয়, সেই ছেলে বড় হয়, তাকে দিয়ে কত কিছু হলো, তারপর তার অসুখ, তার বিসুখ হলো, তারপর সে মরে গেল। তখন ভাবনায় চিন্তায় একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দেখনি, যত রস মরে তত একেবারে 10 ডাক ছাড়তে থাকে। ওই যে कांचा काट जो गिला हुआ लकड़ी को जैसा कि चुल्ली में डालोगे तो वो जलता है, लेकिन पीछे से रस निकलता है, और रस निकालते समय वो चोंचा फूस फांस आवाज़ करता है। तो उसी को बोल रहे हैं। देखो नी, ভিয়েনের উনুনে চেলা কাঠগুলো, কাঁচা চেলা কাঠগুলো বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে, কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মতো হয়ে ফুটতে থাকে, চুঁচা ফুসফাস নানা রকম আওয়াজ করতে থাকে। ঠিক সেই রকম, অর্থাৎ কাঁচা আমিতে যারা মগ্ন রয়েছে, আমার মধ্যে আমি আছে, সেই আমি, ভেতরের যে আমি, সেইটি হলো পাকা আমি, সত্যিকারের আমি। और আমরা যে আমি করি, हम लोग जो हम करते हैं, हम्बा करते हैं, वो ये देह इंद्रिय पिंड विशिष्ट, देह इंद्रिय विशिष्ट ये पिंड को हम करते हैं, আমি করি। আমি বলতে আমি এই শরীরটাকে বোঝাই। এটাই হলো কাঁচা আমি। এইটি শোক, দুঃখ, কষ্ট এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তখন ওই মৃত্যুকালে ওই চোঁচা ফুঁসফাঁস, কান্নাকাটি ইত্যাদি ইত্যাদি করতে থাকে। কিন্তু যিনি পাকা আমিতে প্রতিষ্ঠিত, उनका कोई शोक ताप नहीं होता। यही भगवान श्री रामकृष्ण देव मणि मोहन को ये संसार की अनित्यता और असारता कैसे ये समझाया, इससे कैसे छुटकारा मिलेगी, ये भी उन्होंने कहा। एकमात्र शरणागति शरणागति शरणागति। भगवान के श्री चरण में श्री भगवानेर शरणापन्न हওয়াতেই একমাত্র সুখ। এইটি যেন নানা কথার মাধ্যমে মণিমোহনকে বুঝাইতে লাগিলেন। মণিমোহনও সামলাইয়া বলিলেন, এই জন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। মণিমোহন সেই যে এত কষ্ট পাচ্ছিল, ভেতরটা ফেটে যাচ্ছিল প্রায়, সেই মণিমোহন একেবারে শান্ত হয়ে গেল। এবং শান্ত হয়ে তখন সে বলছে, এই জন্যই তো আমি তোমার কাছে ছুটে আসি, এই জন্যই তো তোমার কাছে এসেছিলাম। বুঝলুম এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না। এই মণিমোহনের সেই যে পুত্র শোক একেবারে চিরতরে শান্ত হয়ে গেল। ভগবান তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছিলেন, তার ভাবের সাথে নিজেকে এক করে নিলেন। এবারে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সেই শোকগ্রস্ত ভাব থেকে কিভাবে নিজেকে উতরানো যায়, শুধরানো যায়, সেটি তিনি তত্ত্বকথা বলে বুঝিয়ে দিলেন, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। বাস অমনি রোগের ঠিক ঠিক ঔষধ ঠিক মতন প্রয়োগ করা হলো, রোগ সেরে গেল, রোগী শান্ত হলো। এইভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাঁর কাছে যে যখন যেমন ভাব নিয়ে এসেছে, ঠাকুর তার ঠিক সেই ভাবটি নিজেই বুঝতে পেরেছেন। কেন? ওই যে তিনি ভাব মুখে রয়েছেন, ভাব মুখে রয়েছেন বলেই তাঁর কাছে যারা যখন যেমনভাবে এসেছে প্রত্যেকের ভেতরের ভাব তিনি বুঝতে পারতেন। তাঁর নিজ মুখে কথা যে দেখো, যখন আমার কাছে কোনো ধরনের লোক আসবে, যে যে ভাবের লোক আসবে, মা জগদম্বা, মা ভবতারিণী আগে থেকে সেসব দেখিয়ে দেন। माँ भवतारिणी पहले से ही उनको दिखला देती, क्या ये अभी तुम्हारे पास ये जो आ रहे हैं ना भक्त लोग, इनका भाव इस तरह से है, तुम उससे बात करोगे तो इस तरह से ही बात करोगे तो उनको शांति मिलेगी, उनका मन आनंद में भरपूर होगा। इस तरह से जैसे मान लो माँ साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ भवतारिणी भगवान श्री रामकृष्ण देव को इस तरह से दिखाया करती थी। यही भगवान श्री रामकृष्ण देव भाव मुखे रहकर सबका भाव समझकर उसी के हिसाब से उनको उपदेश देते थे। आध्यात्मिक राह में चलने के लिए उनको उस तरह से प्रेरित करते थे। भगवान श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणे
ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি, প্রার্থনা করি আমাদেরও যেন এই ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁর শ্রীচরণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আজকের পাঠ আমরা এখানেই শেষ করছি। ওম নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপম ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ ঈশাবতারং পরমীশমিড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি। এখন একটু ভজন